Hello to all my students. Again, I welcome to you all of this English class. Today, in English, we will see lesson number 3 from your Honeysuckle book, and the lesson name is Taro's Reward. As we have already read the 2 pages of this lesson, if someone has missed, please go to the previous videos and watch it. In this video, I am going to explain the other paragraphs of this lesson. Let's begin our story. जैसा कि हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि ये कहानी टारो नामक लड़के की है जो कि अपने माता पिता से बहुत ही प्रेम करता है और वो ये चाहता है कि उसके माता पिता की सारी इच्छाएं पूरी हो सके। कहानी आगे बढ़ जाती है। टारो जब जंगल में काम कर रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जिस दिशा से वो आवाज़ें आ रही होती हैं हमारा टारो उस दिशा में भागने लगता है। आइए देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या हो रहा है। Let's see our 6th paragraph. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टारो ने देखा कि एक पत्थर के पीछे एक सुंदर छोटा सा झरना है। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Here kneeling means घुटना टेक कर and here cupped a little in his hands means took some water in his hands or you can say as if in a cup. अपने हाथों में थोड़ा सा पानी ले लेना या फिर प्याले के समान। हमारा टारो उसी जगह पर अपने घुटने टेक लेता है और अपने हाथों को प्याले के समान मोड़ लेता है और अपने होठों को अपने हाथों पे सटा लेता है। Was it water or was it sake? He tasted it again and again. And always it was the delicious sake instead of cold water. जब टारो उस चीज़ को पी रहा है तो उसके मन में कई सारे प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये बना, क्या यह पानी है या फिर ये साके है? वो बार बार उस चीज़ को चखने लगता है और उसे यह पता चलता है कि जो चीज़ वो पी रहा है वो ठंडा पानी नहीं है बल्कि वो तो स्वादिष्ट साके है। Move to next paragraph. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. टारो अपने साथ लाए हुए घड़े में उस स्वादिष्ट साके को भर लेता है और भागकर घर की ओर जाता है। The old man was delighted with the sake. टारो के पिताजी लाए हुए साके को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. केवल एक घूंट साके का निगलने के बाद टारो के पिताजी का कांपना बंद हो जाता है और वो फ्लोर के बीच में जाकर थोड़ा सा नृत्य भी करते हैं। Move to next paragraph. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. उस दोपहर एक पड़ोसी एक यात्रा के लिए रुका और टारो के पिताजी आदरपूर्वक उस पड़ोसी के सामने एक प्याला साके का पेश करते हैं। The lady drank it greedily and thanked the old man. महिला इसे लालच में पी लेती है और उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद भी करती है। Then Taro told her the story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink. She left in a hurry. तभी टारो उस औरत को अपनी जादुई झरने की कहानी सुनाता है। वो औरत उस स्वादिष्ट साके के लिए सबको धन्यवाद करती है और जल्दीबाजी में वहाँ से निकल जाती है। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. रात होते होते उसने टारो की जादुई झरने की कहानी सारे गांव में फैला दी। Move to next paragraph. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. उस शाम लकड़हारे के घर में लोगों का लंबा जुलूस था। प्रत्येक इंसान ने उस जादुई झरने की कहानी सुनी और सब ने एक एक घुट साके का भी पिया। 1 घंटे से भी कम समय में वो घड़ा पूरी तरीके से खाली हो गया। Move to next paragraph. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. अगली सुबह टारो पहली वाली सुबह से जल्दी काम पे निकल जाता है। He carried with him the largest he owned
for he intended first of all to go to the waterfall. Here intended means planned, योजना बनाई। इस बार टारू अपने साथ एक बड़ा सा घड़ा ले गया, जितना बड़ा वो ले सकता था, और इस बार उसने ये योजना बनाई कि वो पहले उस झरने के पास जाएगा। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. वे लोग अपने साथ मिट्टी का घड़ा, कांच का घड़ा और बाल्टियां लेकर आए थे। वे लोग जिस तरह से उस जादुई साके को भर सकते थे, अपने साथ वो सामान लेकर आए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. तभी एक विलेजर अपने घुटने टेक कर अपना मुख झरने के पास लेकर जाता है और उसको पीने लगता है। वो बार बार उस चीज़ को पीता है। तभी अचानक वो गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, पानी, कुछ भी नहीं बल्कि पानी। दूसरे लोग भी प्रयास करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्वादिष्ट साके नहीं है, ये तो केवल ठंडा पानी है। We have been tricked, shouted the villagers. सारे के सारे लोग क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित स्वर में कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया है, हमें धोखा मिला है। Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. टारो कहाँ है? हम उसे इस झरने में डुबा दें। But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. परंतु जब टारो ने देखा कि वहाँ पे कैसी चीज़ें चल रही हैं, वो इतना बुद्धिमान था कि वो एक पीछे पत्थर के जाकर छुप गया, और पीछे छुपने की वजह से कोई भी टारो को ढूंढ नहीं पाया। Move to next paragraph. Muttering their anger and disappointed, the villagers left the place one by one. Here muttering means speaking unclearly, अस्पष्ट बोलना। वे लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, निराश हो गए थे और अस्पष्ट तरीके से बातें कर रहे थे, और एक एक करके हर एक गांव वाला वहाँ से चला गया। Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? टारो छुपी हुई जगह से बाहर निकलता है। वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। उसके दिमाग में प्रश्न बनता है, क्या ये सही था? क्या साके एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. एक बार फिर टारो अपने हाथ में एक बूंद लेता है और उसको अपने होठों से लगाता है। तब उसे पता चलता है कि यह तो वही हूबहू स्वादिष्ट साके है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. एक विचारशील बेटे के लिए ये जादुई झरना स्वादिष्ट साके देता था, और बाकी सबके लिए ये केवल सिर्फ ठंडा पानी देता था। To last paragraph of this lesson, the story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. टारो की कहानी और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के सम्राट के पास पहुंची तो उन्होंने उस युवा लकड़हारे को अपने पास बुलाया और उसकी अच्छाई और दयालुपन के लिए उसे इनाम के तौर पर 20 सोने के सिक्के भी दिए। तब उन्होंने शहर का सबसे सुंदर फाउंटेन टारो के नाम पर ही रखा। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. सम्राट ने कहा, यह बात सभी बच्चों को माता पिता के सम्मान और आज्ञा पालन के लिए प्रोत्साहित करना था। I am ending my video here. I hope you understand. See you in the next video. Thank you.